تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا، جس نے اپنے علم اور رحمت سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ نہایت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی ظاہری و باطنی ان تمام نعمتوں پر اس کی بے پایا حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی بلند و بالا صفات اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ نہایت بلند اور عظیم شان والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، نیز اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، بہت زیادہ رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے اعمال انجام دے کر اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کر کے تقوی الہی اختیار کرو۔ وہ اپنی رضامندی اور خوشنودی سے تمہیں سرفراز کر دے گا اور اپنی جنتوں میں اعلیٰ درجات پر تمہیں فائز کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، اور جو شخص اس کے سامنے مومن کی حیثیت سے آئے گا، عمل صالح کیے ہوگا تو انہیں بلند درجات ملیں گے، عدن نام کی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ اے لوگو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی تقوی کی راہ اختیار کرے گا اور عمل صالح کرے گا اسے نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذی شان مقصد اور عظیم کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان و زمین جسے اٹھانے سے دستبردار ہو گئے اور اس کے حق کے ادائیگی سے ڈر گئے کہ کہیں اس کے ضائع ہو جانے سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں یا اس میں کمی و کوتاہی کی صورت میں ملامت اور سرزنش کے سزاوار نہ ٹھہریں، اور اس میں کوتاہی برتنے کے سبب کہیں حساب و کتاب اور عذاب الہی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ تو سن لیجئے، یہ عظیم الشان چیز احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ذریعے زمین میں اصلاح کرنا اور ظلم و زیادتی اور محرمات سے اجتناب کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے اولاد آدم، اپنی ابتدا و انتہا اور ان کے درمیان بدلنے والے زندگی کے مختلف حالات پر غور و فکر کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ اسے دنیاوی و اخروی سختیوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ان میں سے صبر کرنے والے اور متقی لوگ ہوں گے انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور حرام شہوتوں اور لذتوں کے پیروکار ہوں گے وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ اے لوگو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف، مصائب، مشکلات اور آفات کی دعاؤں میں شمار کیا کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی اسے پڑھنے کی تلقین اور وصیت فرمایا، اور یہی وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کتنے بڑے بڑے امور ہیں کہ انسان کو اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں جن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم لوگ
लोग भी जान लो तो तुम हंसना कम कर दो और रोना ज्यादा कर दो और बिस्तरों पर अपनी औरतों से लुत्फ अंदोज न होगे, और यकीनन तुम लोग अल्लाह ताला से फरियाद करते हुए मैदानों में निकल जाओ, काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। दुनियावी जिंदगी के बाद हर इंसान से कब्र में सवाल होगा, जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी वापस चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आहट सुनता है। इसी असना दो फरिश्ते उसके पास आते हैं तो वो उसे बिठाकर पूछते हैं, तुम इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं? जो मोमिन है वो तो कहता है मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसे कहा जाता है जहन्नम में अपने ठिकाने को देख लो, अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हें जन्नत में ठिकाना दे दिया है। वो इन दोनों को एक साथ देखता है। रहा मुनाफिक व काफिर शख्स, तो उसे भी कहा जाता है तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है मैं नहीं जानता, मैं वही कुछ कहता था जो लोग कहा करते थे। उसे कहा जाएगा तुमने हक बात समझने की कोशिश की न पढ़ने की। उसे लोहे के हथौड़े से उसके कानों के दरमियान बड़े जोर से मारा जाएगा कि वो चीख पड़ेगा और उसकी चीख को जिन और इंसान इनके अलावा उसके आसपास की तमाम मखलूकात सुनेंगी। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। चुनांचे अल्लाह ताला मोमिनों को साबित कदमी अता करेगा और मुनाफिकीन और कुफ्फार को गुमराह करेगा। दुनिया वालों की गवाहियां उन्हें कुछ फायदा नहीं देंगी। फिर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुल अंबिया और सारे इंसानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम से ये सवाल करेगा कि क्या तुम लोगों ने अपनी कौमों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? जैसा कि इरशाद बारी ताला है, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा यौमइज़िन यवद्दु अल्लज़ीना कफरू व असवु अर्रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द व ला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे जिस रोज काफिर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उन्हें जमीन के साथ हमवार कर दिया जाता और अल्लाह ताला से कोई बात ना छुपा सकेंगे। और अल्लाह ताला ने मजीद इरशाद फरमाया, और उन्हें ठहरा लो इसलिए कि उनसे जरूरी सवाल किए जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया कि उस वक्त तुम एक दूसरों की मदद नहीं करते? ये इरशाद फरमाया, फिर हम उन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे और हम पैगंबरों से भी जरूर पूछेंगे। फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी सरगुज़श्त उनके आगे सामने पेश कर देंगे, आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। फिर अल्लाह ताला हर शख्स से उसके जाती मामलात के बारे में सवाल करेगा। अबू बर्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी शख्स के कदम उस वक्त तक अपनी जगह से न हट सकेंगे जब तक उससे पूछ न लिया जाए उसकी उम्र के बारे में कि उसने इसे किन चीजों में गुजारा, उसके इल्म के बारे में कि उसने इसे किन चीजों में इस्तेमाल किया, उसके माल के बारे में कि उसने कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसे किन चीजों में खपाया। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हसन से ही कहा। हिसाबो किताब की घड़ी सख्त मुश्किल होगी और हिसाब लेने वाली जात इंतहाई बारीक बीन है और उस जाते बारी ताला से कोई चीज पोशीदा नहीं है और वो दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। रोजे क़यामत किसी बंदे के कदम उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकेंगे और पुश्ते जहन्नम पर नस्ब की गई पुल सिरात से गुजरकर वो जन्नत की तरफ उस वक्त तक नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि उसने चार चीजों के बारे में उससे पूछ न लिया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि उसने अपनी जिंदगी के शब रोज किन चीजों में सर्फ किया। अगर वो अपने रब को सच्चाई से जवाब दे देता है और उसने अपनी जिंदगी को अपने मालिक व मौला की फर्माबरदारी में भी गुजारा है तो फिर इताअत गुजारों की कामयाबी और कामरानी के क्या ही कहने। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ये वो दिन है जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा। उनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनसे राजी और खुश और वो अल्लाह से राजी और खुश हैं। ये बड़ी ही भारी कामयाबी है। बंदे से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने कहां से कमाया और किन चीजों पर खर्च किया। यकीनन ये मुश्किल तरीन सवाल होगा और घटन घड़ी होगी कि जब बंदे से उसके ज़राए आमदन और फिर खर्च करने के मसारिफ के बारे में पूछा जाएगा। माले हलाल के बाइस आदमी बुलंद तरीन जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक होता है, जबकि माले हराम की वजह से खुद भी दुनिया में शिकावत की जिंदगी गुजारता है और मरने के बाद उसके वारिसीन भी बदबख्ती और नहूसत का शिकार रहते हैं। खौला बिन्त कैस अंसारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, कुछ लोग अल्लाह के माल में नाहक और बेजा तसर्रुफ करते हैं तो उनके लिए क़यामत के दिन आग है। इसे बुखारी ने रिवायत। तो माल की जिम्मेदारी किस कदर बड़ी है और जो उसे अपने बातिल ख्वाहिशात पर खर्च करता है, हकदारों को उससे महरूम रखता है, उसके लिए यह माल किस कदर बायस शर और फसाद। बंदे से क़यामत के दिन उसके इल्म के बारे में भी सवाल होगा कि इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, और इल्म पर अमल करना यह है कि उसके तलबगारों को सिखाया जाए, भलाई का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। चुनाचे वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देता रहा, क्योंकि अजीम तरीन एहसान यही है कि इंसान को राह हिदायत की रहनुमाई की जाए और हलाकत से उसे रोका जाए। और जो शख्स इन उमूर में अपने रब को जवाब देने की तैयारी में इस जिंदगी में पहले कोताही बरता रहा फिर अपनी इस्लाह और तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेगा, उसे अपनी रहमत से ढांप लेगा और अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। और जो शख्स
शख्स इन 4 चीजों के बारे में जवाब देने में अल्लाह ताला के सामने झूठ बोलेगा तो अल्लाह ताला भी उसे झुठला देगा और खुद उसके आज़ाओ जवारे उसके खिलाफ गवाही देंगे। इरशाद बारी ताला है, और जिस दिन अल्लाह ताला के दुश्मन दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे तो वो रोक लिए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास आ पहुंचेंगे तो उन पर उनके कान और उनकी आंखें और उनकी खालें गवाही देंगी जो कुछ वो किया करते थे। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देने में झूठ गढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इन 4 हालात में किए गए आमाल के जरिए उसका झूठ साबित कर देगा, फिर उसे आग में डाल दिया जाएगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा कि वो क्या लाया और क्या छोड़ कर आया। और इरशाद बारी ताला है, इंसान तो अपने रब के पास पहुंचने तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर उससे जा मिलेगा, फिर जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो उसे आसानी के साथ हिसाब दिया जाएगा और वो अपने अहलो अयाल में खुश वापस आएगा। लेकिन जिसको नामा अमाल पीठ पीछे दिया गया तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा। बेशक वो अपने अहलो अयाल में बड़ा खुश और खुर्रम था। अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान अजीम को बायसे बरकत बनाए, रसूलों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और उनकी सच्ची सीधी बातों से हमें नफा पहुंचाए। यही कहते हुए मैं अपने अल्लाह से अपने लिए और आप सब के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है और जज़ा और सजा के दिन के मालिक है। मैं उसकी हम्द व सना बजा लाता हूँ और उसके ज़ाहिरी फजल पर उसका शुक्र अदा करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, वो जबरदस्त ताकत वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और अमानतदार रसूल हैं। अल्लाह तो अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अहल वयाल पर और उनके तमाम असहाब। हम्द व सलात के बाद ए लोगों, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है और दीन इस्लाम के मजबूत कड़े को थाम लो। जो शख्स उसके तकवा को लाजिम पकड़ लेता है वो बामुराद हो जाता है और हर किस्म के शरूर व फितन और हलाकत खेजियों से महफूज रहता है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला का मोमिनों पर यकीनन ये एहसान है कि उसने उनके लिए उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उसकी आयतों को उन पर तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और उससे पहले वो खुली गुमराही में थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां वालों के लिए सरापाए रहमत बनाकर भेजा है। दुनियावी और उखरवी कोई भी खैर हो जो एक मुसलमान को हासिल होती हो उसको अल्लाह ताला ने उन्हीं के दस्ते मुबारक से जारी किया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अल्लाह ताला के हक के बाद है। इरशाद बारी ताला है, ये नबी मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखने वाला है और उसकी बीवियां उनकी माएं हैं। और अल्लाह ताला ने मजीद इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की और उसके रसूल की दावत को कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज के लिए दावत दे जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर यह हक है कि उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी मोहब्बत को हर चीज पर फौकियत दी जाए, उनके अवामिर की तामील की जाए, उनके नवाही से इज्तिनाब किया जाए, उनकी खबरों की तस्दीक की जाए और उन्होंने जो शरीयत दी है उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और बंदगी की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसकी औलाद, उसके वालिद और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब न हो जाऊं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। यह हदीस अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कमी और उनकी सुन्नत की पैरवी में कोताही की दलील यह है कि हम ईद, मिलादुन नबी और दीगर बिदअत के इर्तिकाब करने वाले बन जाएं। इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत करने वाले सबसे पहले लोगों के अलावा भी कितने ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने ईद मिलादुन नबी के बारे में सुना तक नहीं। वो सुन्नतों की पैरवी और इत्तिबा करके और बिदात और मुहदिसात से अपने दामन को बचाकर कामयाब व कामरान हो गए। इरशाद बारी ताला है, और ये बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, बस उस पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो तुम्हें उसके रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा, कुफर अहले कुफर को ज़लील और रुसवा फरमा, दीन इस्लाम के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह, तू हर जगह अपने दीन, अपनी किताब और अपने नबी की सुन्नत की नुसरत और ताईद फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमेशा के लिए बिदअतों को ज़लील और रुसवा कर दे जो कि तेरे दीन के मुनाफी है। ऐ अल्लाह, तू हमें अपने दीन पर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह, तू मुसलमानों से उनके मसाइब और तकलीफ को दूर कर दे और अहले फलस्तीन से इब्तिला और आजमाइश और मुश्किलात का इजाला फरमा। अपने दुश्मनों पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर। ऐ अल्लाह, सहूनियों को मस्जिद अक्सा पर मुसल्लत ना कर और मस्जिद को हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रख। ऐ अल्लाह, तू इस मुबारक वतन की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों और फौजियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इसकी सरहदों और फौजियों की हिफाजत फरमा। कुफ्फार, शरीर लोगों और फाजिरों की शरंगेजियों और साजिशों से इसकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे और मुसलमानों के फौज शुदगान की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, गमज़दा लोगों के गमों को दूर फरमा, कर्जदारों के कर्ज दूर करने में उनकी मुआवनत फरमा। हमारे और मुसलमानों के बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें और हमारी औलादों को इन
انسان اور جنات، شیاطین، سرکشوں اور جادوگروں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ایسے کاموں کی بھی جن میں ملک کی خیر خواہی اور بھلائی مضمر ہو، اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد اور ازواج مطہرات پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ لہٰذا اللہ بزرگ و برتر کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ جان لو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔